Hello students, hope things are going well with you. So let's start our today's lesson. Today we are doing block 4 perspective writing and lesson plan 2, that is reading an essay, and you will be able to identify the structure of an essay written from the perspective of an object. So आज हम एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. Flying horse is saying these lines, so you have to listen these lines very carefully. I'm a flying horse. I was upset when Krishna decided not to frame me. I waited patiently on Krishna's desk. So students, tell me, who is speaking these lines? Can it actually wait and get upset? Can horse get wait? So these lines are written from the perspective of the painting to describe how it felt when it was ignored by Krishna. So ये लाइन्स हैं ये फ्लाइंग हॉर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं जब कृष्णा पेंटिंग को इग्नोर कर रहा था, उसे फ्रेम नहीं करवा रहा था. Today we will be reading an essay written from the perspective of an object. So open your Exceed content book to the essay being a television set at page number 26 of your Exceed content book. Now let's start reading it. Perspective writing being a television set. So how would you feel if someone woke you up in the middle of the night just because he or she couldn't sleep? This is exactly how I feel when someone switches me on whenever they feel like it. That is the disadvantage of being a television. I can never sleep when I want to. Nobody understands that I too need some rest to work properly. So now this essay is written by a perspective of television that said that how does TV set feel about its life and what is the daily routine of TV set. सो टीवी सेट कह रहा है कि तुम्हें कैसा फील होगा अगर तुम्हें आधी रात को कोई उठा दे और जब तुम सो ना पाओ. सो ये बिल्कुल वैसा ही है जब भी किसी का मन करता है और मुझे स्विच ऑन कर देता है. बेटा कई बार ऐसा होता है कि जब भी रात को नींद नहीं आती तो हम बोर हो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि चलो टीवी ऑन कर लेते हैं. सो ये जो है टीवी सेट होने का डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा नुकसान है. तो टीवी कहता है कि मैं कभी नहीं सो पाता जब मैं सोना चाहूँ, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता, कोई ये चीज़ नहीं समझता कि मुझे भी रेस्ट करने की ज़रूरत है. सो दीज आर नॉट द लाइन स्पोकन बाय टीवी. एक्चुअली टीवी कैन नॉट रियली स्पीक. कैन टीवी स्पीक? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. टीवी कैन नॉट स्पीक, बट दिस इज द एसे रिटन बाय द परस्पेक्टिव of TV set. So perspective is the way of thinking by someone. Now second paragraph, my days with Lata are almost the same every single day. Lata is my owner. She normally keeps me switched on as she gets ready for office. I get some rest only when she leaves. When she comes back in the evening, my really work begins. Lata enjoys watching the news, some sport channels, and sometimes her favorite movie too. But it is when Lata's nephew and niece come over to spend the weekend that my life becomes difficult. Her niece Riya likes to watch cartoons while her nephew Rohan wants to only watch movies. They keep changing my channels every other minute. Sometimes they increase my volume so much I start getting a headache from all the noise. My speakers too get tired and keep complaining the other way, and even my remote got into a bad mood when for the 100th time Rohan dropped it on the floor. I long for some time and only have the attention of my owner Lata. So second paragraph is describing the daily routine of TV set, that how does TV set spends his every single day. So TV set यहाँ में बताता है कि जो लता के साथ जो मेरा डे होता है बहुत ही नॉर्मल सा होता है, सेम होता है रोज़. लता है मेरी ऑनर है, हमेशा ऑन रखती है जब भी वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है. आप लोगों के साथ भी होता है, जब आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो लगता है कि न्यूज़ देख लेते हैं या कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, चलो जब तक रेडी हो जाएंगे और ये टीवी पे सॉन्ग भी प्ले होता रहेगा. और मुझे सिर्फ तब रेस्ट मिलता है जब वो ऑफिस चली जाती है. शाम को वापस आती है, फिर मेरा दोबारा से रियल वर्क शुरू हो जाता है क्योंकि उसे ऑफिस से आते न्यूज़ देखना पसंद है. और कभी कभी जो है
उसे स्पोर्ट्स चैनल देखना भी पसंद है और फेवरेट मूवीज़ भी उसे कभी कभी देखना पसंद है। लेकिन जब लता के नेफ्यू और नीस घर आते हैं अपना वीकेंड स्पेंड करने वहाँ पे, तो मेरी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो नीस है रिया, उसे कार्टून्स देखना पसंद है, नेफ्यू रोहन को मूवीज़ देखना पसंद है और मेरे चैनल्स चेंज करते रहते हैं हर सिंगल मिनट के बाद। क्या होता है, कभी कभी मेरी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है, मेरे स्पीकर्स भी थक जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं और मेरा जो मूड है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है जब रोहन बहुत बार मेरे रिमोट को जो है फ्लोर पे ड्रॉप कर देता है। मुझे भी लगता है कि कुछ फ्री टाइम होना चाहिए मेरे लिए और मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ मेरे ओनर लता की अटेंशन चाहिए। In this way, you can see in the second paragraph that the daily routine of TV set is described in the second paragraph. Although being on TV can be frustrating at times, I still like being myself. I suppose my life would have been worse if I were a remote. I don't think I would want anyone to keep pressing my buttons all the time or dropping me here and there. Once I heard the remote control trying to come out from under the cushions on the sofa, I don't have to go through all this because Lata makes sure that I have a good life. She keeps me clean and has given me a lovely place on the wall which lets me observe everything happening around me easily. Now it's third paragraph. Third paragraph describing the life of TV, that how satisfied TV is with its life. टीवी सेट यहाँ पे बताता है कि मैं कभी कभी जो है टीवी बनना फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी लाइफ पसंद है। अगर मैं सोचता हूँ मैं रिमोट होता तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती मेरी लाइफ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बार बार फ्लोर पे गिराता। और जब मैं सुनता हूँ कि रिमोट कंट्रोल क्राई कर रहा है, कि कई बार होता है कि हम फ्लिंग कर देते हैं, ऐसे ड्रॉप कर देते हैं कहीं भी, सोफे के ऊपर, कुशन के नीचे, बेड पे, एंड देन वी स्टार्ट फाइंडिंग दैट वेयर इज़ रिमोट। टीवी कहता है मैं ये सब नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा होता। और जो लता है मेरी ऑनर, वो बिल्कुल ये इंश्योर करती है कि मुझे अच्छी लाइफ मिले, मुझे कि वॉल पे अच्छा सा प्लेस मिला हुआ है, मुझे क्लीन रखती है और मैं वॉल पे से सब कुछ अपने आसपास जो हो रहा है वो आसानी से देखता रहता हूँ। We read the essay to identify from whose perspective it is written. We have to underline first sentence of each paragraph and identify what it tells about each paragraph. The essay is written from a TV's perspective and describes the life of a TV. The first sentence of every paragraph is the topic sentence. It tells the main idea of every paragraph. The first paragraph tells us that the essay is about a TV set. The second paragraph tells us what a TV set goes through in its everyday life. The last paragraph tells us that it still loves its life because its owner takes good care of it. थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि टीवी को अपनी लाइफ बहुत पसंद है क्योंकि उसका ओनर जो है उसकी अच्छी केयर करता है. सो व्हाट डू वी नीड टू कीप इन माइंड while writing from the perspective of an object, and what objects can we choose to write our essays on? हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से ऐसे लिखेंगे तो हमें क्या चीज़ें माइंड में रखनी होंगी और किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम चूज़ कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए. To write an essay from the perspective of an object, we need to see things, think and feel like the object. We need to ask questions ourselves, like such as how do things appear to this object? How would it feel and react? Is it happy to have that kind of life or not? We can write essays on the lives of any object. For example, we may choose a refrigerator, a stapler, a remote, a laptop, a school bag. Since these objects don't really have their own perspectives, we need to use our imagination to write our essays. हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? हमें थिंग्स को ना बिल्कुल वैसे ही सोचना होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या सोचेगा. बिल्कुल जैसे हम अगर अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हैं तो हम वही चीज़ें लिखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फ़ील कर रहे हैं. तो अगर हम मान लीजिए फ्रिज के पर्सपेक्टिव से हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमें बिल्कुल फ्रिज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि फ्रिज को कैसा लगेगा, फ्रिज कैसा फ़ील करेगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट सब चूज़ कर सकते हैं आप. लैपटॉप ले सकते हो, रिमोट, कंप्यूटर, स्कूल बैग, बॉटल, क्योंकि इन चीज़ों का अपना पर्सपेक्टिव नहीं होता, लेकिन हमें अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ पे इनके अकॉर्डिंग. इन दिस वे वी कैन राइट एनी एसे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. Now take out your worksheet at page number 22, that is reading the essay.
So read the essay Life is About Moving constantly and answer the questions that follow. So now let's start reading. How would you feel if you could not meet your family or hear their voices? Not such a good thought, is it? That is what my life is about. I hang from the ceiling of a room like the rest of my family members. I am a ceiling fan and move in circles all summer to keep you cool and fresh. Some of my cousins are mounted on stands on the floor and can move their faces here and there to look around. So what is written in the paragraph? अगर आपको कैसा फील होता अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाते, बहुत दिनों तक उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, तो एक अच्छा थॉट नहीं है। मेरी लाइफ ऐसी ही है, मैं हमेशा जो है सीलिंग फ़ैन से हैंग होता रहता हूँ। एंड मैं एक सीलिंग फ़ैन हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा आपके घर में, आपके रूम में सीलिंग फ़ैन लगा होता है, वो हमेशा वहीं पे हैंग हुआ रहता है और वो कहीं वहाँ पे जो है वहाँ से हिल भी नहीं सकता। एंड मूव इन सर्कल्स ऑल समर टू कीप यू कूल एंड फ्रेश, और सर्कल्स में राउंड राउंड घूमता रहता है आपको कूल और फ्रेश रखने के लिए। और जो कुछ मेरे कज़न्स हैं लाइक ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं, एंड जो फैंस दूसरे तरीके के जो फैंस होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं इधर उधर देखने के लिए। सो नाउ सेकंड पैराग्राफ, माय लाइफ इज़ ऑलवेज अंडर समवन एल्सेस कंट्रोल। मेरी लाइफ हमेशा किसी दूसरे के कंट्रोल में होती है। आई मूव इन सर्कल्स ओनली व्हेन समवन स्विचेज मी ऑन, कि मैं सर्कल में तभी मूव कर सकता हूँ जब मुझे कोई ऑन करता है। एंड स्टॉप व्हेन समवन स्विचेज मी ऑफ, और मैं रुक जाता हूँ जब मुझे कोई ऑफ कर देता है। सो आई कीप मूविंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, और मैं आवर्स तक लगातार घंटों मूव करता रहता हूँ। समटाइम्स विदाउट अ ब्रेक, कभी कभी तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिल पाता। आप लोग भी देखते हैं समर में आपके घर में जो फैंस हैं लगातार चलते रहते हैं। इट्स लवली व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड सडनली मेक्स द मूव ऑन माई ओन, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अचानक से एक ठंडी सी हवा चलती है और मेरी जो आर्म्स हैं वो अपने आप मूव करने लगती हैं। आई फील दैट ह्यूमन्स आर सो इनह्यूमन समटाइम्स, मुझे लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कभी कभी। दे डोंट रियलाइज़ दैट आई टू कुड बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि जब मैं भी पूरे दिन काम करता हूँ तो मैं भी थक सकता हूँ। दे गेट देयर रेस्ट व्हेन दे स्लीप थ्रू आउट द नाइट, जो वो रात को सोते हैं उन्हें पूरे टाइम रेस्ट मिल जाता है। बट आई डोंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप, लेकिन मैं तो पलक भी नहीं झपका सकता, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। आई एन्जॉय द विंटर बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम आई गेट सम रेस्ट, मुझे विंटर सीज़न बहुत पसंद है क्योंकि मुझे तभी रेस्ट मिल पाता है। बीइंग कोल्ड नोबडी वांट्स मी टू मूव इवन स्लाइटली, तो आपने देखा है विंटर सीज़न में आप लोग भी फ़ैन ऑन नहीं करते हैं, तो फ़ैन बता रहा है कि उसे उस टाइम अच्छा लगता है क्योंकि रेस्ट मिल जाता है। नाउ थर्ड पैराग्राफ, माई लाइफ इज़ अबाउट टायरलेस मूवमेंट। Sometimes I wish I were a tube light just sitting in one place and not moving at all. कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ट्यूब लाइट होता और एक ही जगह पे बैठा रहता और बिल्कुल हिलने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द एस्से? Main idea of the essay is that a ceiling fan is fed up with its life of constant movement. Underline the topic sentence in the paragraphs. What do the first, second, and third paragraph of the essay describe? Topic sentence, my life is always under someone else's control and my life is about tireless movement. The first paragraph introduces the fan by talking about how it misses its family members. The second paragraph tells us about the fan's daily life, which is to give fresh air to every day. It describes how the fan loves winters because it does not have to work. The third paragraph concludes the essay by stating that the fan is fed up with its life of constant movement. फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है यहाँ पे कि फ़ैन जो है बेडली अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिस करता है। सेकंड पैराग्राफ में उसका डेली रूटीन बताया गया है। थर्ड पैराग्राफ में बताया कि फ़ैन जो है अपनी लाइफ से बहुत ही फेड अप है। नाउ क्वेश्चन 3, इमेजिन योर सेल्फ एज अ ट्यूब लाइट, राइट वन थिंग दैट इज़ गुड अबाउट योर लाइफ। आपको इमेजिन करना है कि आप ट्यूब लाइट हैं और आपको क्या अच्छा लगता है अपनी लाइफ के बारे में। आई एम अ ट्यूब लाइट, द गुड थिंग अबाउट माई लाइफ इज़ दैट आई लाइट अप द हाउस एंड इनेबल पर्सन टू वर्क, कि मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं जो है हाउस को बिल्कुल रोशनी देता हूँ और लोग मेरी वजह से काम कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, हाउ टू राइट an essay with the perspective of an object. So you have to complete your S2. Thank you. Have a nice day.